coincidence, namely the genesis of modern Satyagraha on September the 11th, 1906. On this momentous day, Gandhi, serving as the prime initiator, ushered in a new era of resistance predicated on moral authority and non-violent means, offering a beacon of hope amidst the prevailing climate of economic, political, and cultural violence, fueled by imperialism. Gandhi's overarching objective was to empower the marginalized and foster unity among disparate communities, transcending geographical and ideological boundaries to foster a global ethos of understanding and cooperation. In a twist of historical fate, two distinct 9/11s, separated by nearly a century, stand juxtaposed, each embodying diametrically opposed narratives and ideological paradigms. The 9/11 of 1906 heralds a narrative of liberation from fear, hatred, and aggression, embodying a democratic vision founded on principles of nonviolence and collective empowerment. In stark contrast, the 9/11 of 2001 symbolizes the perpetuation of violence and counter-violence, engendering insecurity and the proliferation of authoritarian tendencies that erode the bedrock of true democracy, namely justice and freedom. Slide 2, please. Slide 2. Please change to slide 2. To vividly illustrate this stark, please change to slide 2. Yeah, thank you. To vividly illustrate this stark dichotomy, a haunting image of the Twin Towers exploding featured on the front cover of The Economist dated September the 8th, 2006, commemorating the 5th anniversary of the tragic event, serves as a poignant reminder of the cataclysmic events of 9/11. Adjacent to this evocative image, a profound quotation by Gilbert Murray, a distinguished British intellectual, captures the essence of Gandhi's Satyagraha's campaign in South Africa, elucidating its profound impact on politically and ethically sensitive individuals of the time. This juxtaposition of imagery and text encapsulates the contemporary predicament, underscoring the imperative of reconciling with the traumatic shock of 9/11-2001 and revitalizing the dormant force of nonviolence epitomized by Gandhi's Satyagraha. The commemoration of Gandhi's 9/11 1906 on its centenary in 2006, amidst the remembrance of 9/11-2001, reflects a collective endeavor to reclaim the ethos of healing and peace from the grip of despair and revenge. Through initiatives such as the screening of Richard Attenborough's acclaimed film Gandhi across the United States, including the Regal Theater in New York, located adjacent to Ground Zero, grieving Americans and reflective citizens worldwide sought to imbue 9/11 with a newfound significance, a day of introspection and reconciliation, rather than that of hatred and violent retaliation. The convergence of these diametrically opposed 9/11s underscores the urgency of reawakening the age-old force of nonviolence by unveiling Satyagraha and thereby heralding a paradigm shift in contemporary political agendas towards a future imbued with the spirit of peace, justice, and understanding. Now let us explore Satyagraha's cultural roots and Gandhi's personal journey. For to underscore the significance of Satyagraha, it is crucial to delve into its historical and cultural underpinnings. Deeply rooted as they are in the Indian social and cultural ethos, Gandhi, recognizing the intrinsic dynamism of Satyagraha, conceptualized it not as a static
ideology, but as a dynamic process capable of adapting to differing contexts to address pressing issues effectively. Tracing the cultural lineage of Satyagraha unveils its deep-seated roots in the Indian psyche. Gandhi himself acknowledged this when he remarked, I quote, "I have merely given expression to the thoughts that were dormant within the hearts of the Indian people." This acknowledgement elucidates Gandhi's role not as the sole originator of Satyagraha, not as the sole originator of Satyagraha, but as its articulator, its modern articulator, challenging the collective consciousness of the Indian populace. Next slide, please. Next slide. In coining the term Satyagraha, Gandhi drew upon traditional Indian principles such as Satya and Ahimsa, which he deemed as ancient as the hills, complemented by concepts like tapas, self-discipline for purification, and yajna, self-sacrifice in selfless service to others. Satyagraha embodied a love force or soul force manifested through nonviolent resistance and civil disobedience. Gandhi advocated Satyagraha as the preeminent means of attaining India's independence, considering it more efficacious than violent resistance and viewing it as a transformative practice conducive to self-development. And this is important, just as important as the nonviolent aspect, as a transformative practice conducive to self-development. Personally, too, Gandhi was able to conceive of Satyagraha due to being deeply influenced by his own cultural inheritance and upbringing, by his father's moral courage and stress on truthfulness, his mother's religious self-discipline, and his wife Kasturba's unwavering resolve. Indeed, the strength of character of his mother and his wife made him aware of the crucial political role of women, whom he considered as ideal Satyagrahis. Then, of course, there was the influence of Jainism, which exemplified ahimsa par excellence. Next slide, please. Moreover, Gandhi was cognizant of India's long-standing tradition of nonviolent resistance against political injustice, as evidenced in incidents recounted in his political manifesto, Hind Swaraj, dating from 1909. Exemplified in this direct quote. You could read it, please. Let me explain the implications. Traditionally, resisting injustice was considered as a citizen's moral right and duty. This is also important, not just a right, but a duty of a citizen that Gandhi wanted to reinvigorate and transform into a modern political strategy. For this tradition of nonviolent non-cooperation and civil disobedience had been almost paralyzed during colonial rule. Gandhi's ability to revive and adapt this age-old practice of nonviolent resistance stemmed from a confluence of personal attributes and transformative experiences. His reading of Tolstoy and Thoreau, of course, just confirmed what he already knew from Indian traditions. And his self-assurance, intellectual curiosity, adventurous spirit, and resolute defiance against injustice were honed during his formative years, including his legal studies in London and subsequent apprenticeship in South Africa. Next slide, please. Arriving in South Africa in 1893 to serve as a legal advisor, Gandhi's encounters with discrimination and injustice against the Indian diaspora catalyzed his transformation into a staunch advocate of Satyagraha. The pivotal moment came when he was ejected from a first-class compartment on a train, prompting him to confront what he termed the disease of color prejudice. This is also important. He inverts the colonial discriminatory categorization of Indians being diseased in calling the racism as the disease of color prejudice.
And he also opposes thereby colonial oppression on a broader scale. Next slide, please. Gandhi's commitment to non-violent resistance was put to the test during the crisis precipitated by the proposed Asiatic Law Amendment Ordinance, or Black Act, in 1906, aimed at curbing Indian immigration to South Africa. In the Transvaal news media, the necessity of this legislation was highlighted, as shown in this cartoon, which depicts Asiatic immigration as a tiger blocking the road to a white civilization, which the Transvaal Ordinance aims to cut back with brutal, albeit furtive force, the dagger. The man in breeches represents Prime Minister Botha with the ordnance dagger in his hand, ready to thrust it into the ferocious Asiatic tiger. It was the fear, violence, and inhumanity inherent in this scenario that Gandhi intended to counter through an extensive press campaign backed up by the dignified, disciplined, and non-violent mobilization of the Indian community. Organizing a mass gathering of 3,000 Indians, Hindu and Muslim, free and indentured, in Johannesburg at the Empire Theatre, which happened to be under Jewish management, Gandhi orchestrated a campaign of civil disobedience against the discriminatory legislation. However, it was the spiritual commitment exemplified by an elderly Muslim merchant, Said Haji Habib, who pledged allegiance to nonviolent resistance with God as a witness, that left a profound impression on Gandhi, who underscored the spiritual nature of Satyagraha, being inspired by Said Haji Habib. Next slide, please. The Islamic influence on Gandhi's conception of Satyagraha as a spiritual struggle against political violence remains a lesser known aspect of his philosophy. However, the picture of Gandhi serving as a mouthpiece for a non-violent jihad of the inner spiritual variety would revolutionize both our understanding of the Mahatma and would certainly shake of violence being inherent to Islam. Furthermore, by framing Satyagraha as a non-violent jihad of inner spiritual transformation, Gandhi's historic example inspires us today to challenge prevailing stereotypes about violence being inherent to Islam, offering a nuanced perspective essential for countering contemporary Islamophobia. Next slide, please. So in juxtaposing two diametrically opposed 9/11s, the transformative potential of nonviolence embodied by Satyagraha emerges as a potent antidote to the scourge of violent terrorism and counterterrorism plaguing the modern world. By embracing the ethos of nonviolent resistance, humanity can chart a course towards conflict resolution and reconciliation in an era overshadowed by the specter of violence. But let us now return to Gandhi's strategic approach to Satyagraha and the challenges faced in South Africa over a century ago. Following the historic meeting on 9/11/1906 in Johannesburg, which marked the inception of the first Satyagraha campaign in the Transvaal, Gandhi demonstrated remarkable organizational skills and charisma. He succeeded in imbuing the Indian immigrants with confidence and a sense of dignified self-respect, uniting them in resolute opposition to government injustice, emphasizing openness to negotiations and fostering friendly relations with the Europeans in South Africa. Gandhi recognized these as essential elements for achieving a viable solution. Next slide, please.
The efficacy of Gandhi's message resonated even in the distant imperial metropolis of London, as depicted in this amusing cartoon published in the London Sunday Times in 1907, entitled Passive Resistance in the Transvaal, the Steamroller versus the Elephant. The cartoon humorously depicts the Indian community under Gandhi's leadership resisting the government's oppressive measures. Despite facing relentless pressure, the Indian community, likened to an elephant, maintained its steadfast resolve, thwarting the governmental steamrollers' attempt to subdue it, and just didn't move. This elephant sat tight, and the steamroller exploded. So importantly, from this cartoon, the atmosphere in the previous cartoon dissipates. Of the session, I'm sorry to intervene. We have strength. I wish you could go on and on and on, but I want to save time to participate. So please come to your presentation, which is so bright, so brilliant, so extraordinary, within 3-4 minutes. Yes, so then maybe we can just look at the next slides. The next slide. So this is the next slide, please. I mean, if the slide could, yes. So this is evoking a theatrical This is Lord Amptill's statement about Gandhi, that his conscience represented a higher court of appeal, and that he would not move from what he felt was the correct, the just way of behaving. The next one, this is when Gandhi, no, this, you've missed out a few. I don't think this is, this is very conducive. There's, okay, I mean, I think I have sent my text so it can be read, and if the time is so short, I would just like to say that Gandhi's experience and apprenticeship in Thank you. Yes, thank you, thank you. Thank you. This, okay, then is this, has this finished then? Then I will exit as well. Stay for the discussion. Now I request Bhuvan Jha to make a presentation, then time. Oh God. Spare up the time constraint. So please conclude it within 14-15 minutes. धन्यवाद प्रधान जी, और प्रधान साहब से बहुत पुराना परिचय रहा है। हेलो पैनलिस्ट प्रोफेसर अनिल दत्त मिश्रा जी, Dr. Satish Jha and Namita for inviting me here, and thank you and to the Gandhi Studies Circle. What does Satyagraha mean to us, and what did Satyagraha meant for Gandhi and his chief disciple Vinoba Bhave? जिस तरह से चर्चाएं होती हैं, और अभी आपने प्रोफेसर गीता धर्मपाल और कई जगह पैसिव रेसिस्टेंस की बात भी आई, शब्द में काफी ताकत होती है, उसकी चर्चा भी करेंगे हम लोग। और जिस सत्याग्रह को जीकर गांधी जी हिंदुस्तान लौटे, that gave him a strong sense of confidence, that is very important.
and that fearlessness that he imbibed and the kind of life that he had lived in South Africa also gave him immense popularity before he had actually embarked on an active political life in India. These two things are very significant. A formidable example of his fearlessness is when he speaks against the viceroy, the English regime, the colonial exploitation, the lack of distrust. At the foundation ceremony of the Banaras Hindu University, there was a big furor, and a FIR was likely to be filed, but Madan Mohan Malviya was not filed. But a large number of princes boycotted the session because Gandhi had spoken something which was not soothing to them. He was speaking actually about the curfew-like situation in Varanasi, which had been unleashed because of the presence of the viceroy and several English officials. And he said कि यदि इतना विश्वास में कमी है अंग्रेजों को और हमारे बीच में, इससे तो बेहतर होता कि वाइसराय मर ही जाते। तो जैसे ही ये शब्द बोला तो काफी हंगामा हुआ और दरभंगा महाराज चेयर को सेशन कर रहे थे, बहुत सारे जमींदार वहां से उठ करके चले गए। फिर बीच बचाव मालवीय जी स्टेज पर आए, उन्होंने बोला कि यह उद्देश्य नहीं था गांधी जी का, वो यह कहना चाह रहे थे कि प्रजा विश्वास का संबंध, मैत्री संबंध होना चाहिए। यदि ऐसा नहीं है तो ऐसा संबंध होने का अर्थ ही क्या है? Then I go back to, I advance to November 1919. Gandhi had launched his Satyagraha in April 1919 against the Rowlatt Act. और उसके बाद जलियांवाला बाग भी हुआ, पंजाब में काफी नरसंहार हुआ और काफी लंबा मार्शल लॉ रेजिम चला। नवंबर 1919 में गांधी का पहला आगमन होता है अमृतसर में। दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट ही वाज विजिटिंग अमृतसर, एंड वन ऑफ हिज क्लोज फ्रेंड्स चार्ली एंड्रूज wrote a very beautiful article in the Tribune. I will just read and excerpt a few lines from that article, and that shows how Gandhi, who was not yet visible in the politics to an extent that he had been in South Africa, और अमृतसर के लोगों ने तो उन्हें देखा नहीं था, तो किस प्रकार जब अमृतसर उतरते हैं और जहां जाना है वहां तक जाने में कितना लंबा समय लगा, लगभग 5 घंटे का, और किस प्रकार से एक ऐसा शहर जहां पर कि इतना ज्यादा इंग्लिश ऑपरेशन हुआ था, उसको बहुत सुंदर ढंग से चार्ली एंड्रूज ने कैप्चर किया अपने लेख में, ट्रिब्यून में। He arrived in 4th November 1919. It revealed, this is Charlie Andrews' quote, it revealed in a light I had not seen before the psychology of the Indian crowd during a time of intense devotional fervor and excitement. The procession through the city, which occupied altogether nearly 5 hours, was altogether transformed by the multitude into a religious ceremony. No one had instructed them. From first to last, it was spontaneous in the fullest sense of the word. In all the varied scenes throughout the day, the women of Amritsar were, if anything, more prominent than the men. They crowded the balconies and windows and house tops to overflowing in order to perform their act of darshan. They came out of their seclusion to rejoice and worship in a manner which only a great religious festival could evoke. And on this occasion, the hearts of the Mussalman women were beating in unison with those of their Hindu sisters. Of the significance of the fact, there could be no doubt whatever, the whole city was one. So these are two important implications of the life of a Satyagrahi that Gandhi had lived in South Africa and which he had just tried to unearth, just tried to unleash, just tried to experiment in India also. By Satyagraha, समय का constant ध्यान रखना है, क्योंकि हम चाहते हैं कि ज्यादा डिस्कशन में बिल्कुल 10 मिनट का समय। 10 मिनट? हाँ। I don't think we have 10 minutes. What event तो खत्म करना है। Let us carry on. I have been asked to finish the whole thing. I fully agree.
just try to conclude in 5 to 10 minutes. कंक्लूड कर लीजिए। Gandhi was a firm believer in the organic unity of human society. यदि एक व्यक्ति आध्यात्मिक रूप से आगे बढ़ता है तो पूरा विश्व उससे लाभान्वित होता है। उसी तरह से यदि एक व्यक्ति गिरता है तो पूरा समाज उसी हद तक गिरता है। विनोबा इसी भाव को थोड़ा आगे ले जाते हैं। चूंकि ईश्वर ने ही हर व्यक्ति का निर्माण किया है तो यह सिद्धांत प्रतिपादित करना एक व्यक्ति की इच्छा और उद्देश्य दूसरे की इच्छा और उद्देश्य के विरोध होगा। गांधी के सत्याग्रह में तपस्या भी है और आग्रह भी है। तपस्या का अर्थ है नैतिक अनुशासन, शरीर जो कि शरीर को आत्मा के अधीन कर दे, आत्मा के शक्ति के अधीन कर दे। इसके दो महत्वपूर्ण इस तपस्या के दो महत्वपूर्ण आयाम हैं, वैराग्य और अपरिग्रह। और गांधी बार बार हिंदू स्वराज में भी इस बात को दोहराते हैं और बाद भी दया धर्म को मूल है, धर्म के मूल में दया है और पाप मूल अभिमान, पाप के मूल में अभिमान है। फिजिकल 2 मिनट में खत्म कर, टाइम बिल्कुल नहीं, क्योंकि बच्चों को मैं चाहता हूं कि उसमें आप भाग लें। दैट विल बी प्रोडक्टिव। ज्यादा बच्चे सवाल करेंगे, हम लोग इसमें। हाँ, मैं बस 3 मिनट लूंगा। ठीक है सतीश जी, आपके लिए भी नोटिस। ठीक। गांधी का मानना है कि सत्याग्रह और फिजिकल फोर्स उसमें एक मौलिक अंतर है। यदि सरकार कोई नियम बनाती है एंड इफ आई अटैक द गवर्नमेंट फॉर दिस देन आई यूज फिजिकल फोर्स। इफ आई रिफ्यूज टू एक्सेप्ट इट एंड अंडर all kinds of sufferings that come with that refusal, then that is आत्मबल, that is सत्याग्रह। सत्याग्रह में मैं अपना ही बलिदान देता हूं। उन्होंने सत्याग्रह स्वराज्य और स्वदेशी के संबंधों को भी दिखाया। जो राज्य अपने मन का हो उसको स्वराज्य कहते हैं और इसकी जो कुंजी होगी, इसको ठीक से अनावरण करने की जो कुंजी होगी वह सत्याग्रह होगा या आत्मबल होगा। और इस बल को पूर्ण रूप से आजमाने के लिए जिस चीज को पूरी तरह से अपनाने की जरूरत होगी वह है स्वदेशी। गांधी यह भी मानते थे कि जो सत्याग्रही है वह बहुत बड़ी संख्या में नहीं हो सकता है। इसलिए जब ट्रांसवाल की, अभी मैडम ने ट्रांसवाल की बात की, सितंबर 1906 की, उस सभा में उन्होंने इस बात को स्पष्ट किया कि मैं जानता हूं कि प्रतिज्ञाएं और व्रत अत्यंत महत्व के या दुर्लभ अवसर पर ही लिए जाते हैं। यदि हम बार बार प्रतिज्ञा लें, व्रत लें तो वो फिर झूठा हो जाता है। पहले निश्चित करना होगा कि उसमें प्रतिज्ञा लेने की शक्ति या संकल्प है कि नहीं। इस प्रकार के प्रस्ताव बहुपारित करते, जितने लोग कसम खाते हैं उतने ही लोग उस कसम से बंधते हैं। इसलिए उसका क्या परिणाम होगा उस सत्याग्रह का, इसको पहले से आंकले, काउंट द कॉस्ट एंड देन ओनली resolve to engage as a सत्याग्रही। विनोबा भावे सर्वोदय को व्याख्यायित करते हैं आजादी के बाद और यह बार बार कहते हैं कि जो सत्याग्रह की आवश्यकता है वह आजादी को ठीक से परिभाषित करने के लिए। का अर्थ खत्म नहीं हुआ, वह अलग अलग रूपों में अपने को दिखाने की कोशिश करेगा। सर्वोदय शब्द के बारे में कहते हैं यह अंत्योदय से थोड़ा बेहतर मानते हैं उसको, और जो यूटिलिटेरियन फिलॉसफी है उससे भी बेटर मानते हैं। शब्द तारक होते हैं और मारक भी। ऐसे ही एक महान शब्द का हमने किया है। शब्द क्या कहता है? हमें चंद लोगों का उदय नहीं करना है, अधिक से अधिक लोगों को उदय से भी हमें संतोष नहीं है। सबका उदय से ही समाधान होगा। छोटे बड़े, दुर्लभ सबल, जड़ बुद्धिमान, सबका उदय होगा, तभी हम चैन विषय रहा है। हाँ, इन्हीं शब्दों के साथ
बहुत मैं इतना क्लियर एंड लाउड है भुवन जी ने जो बात रखी, मैं कोई न कमेंट करना चाहता हूँ न समराइज करना चाहता हूँ। और आपको कितना मिनट? 2 मिनट में कहेंगे तो वो हम खत्म कर नहीं देंगे। नहीं नहीं 2 घंटा कहेंगे तो नहीं, 2 घंटा तो समय नहीं है ना। पहले आप तय कर लीजिए कि कितना मिनट आप दे रहे हैं। 15 मिनट एकदम 15 मिनट में। और मेरे पास घड़ी नहीं है। एकदम 15 मिनट। ठीक, आई एम सॉरी। अभी लोग सवाल, इसका एक कारण है, एक सेकंड दे रहा हूं। बहुत देख लिया हम क्या हो जाए ना बात सारा। में पहुंचे, और वो तभी पहुंचे कि जब उनके मन में जो सवाल है वो हमारे सामने आएंगे। इसलिए प्रेजेंटेशन शॉर्ट, डिस्कशन ज्यादा। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मेरे सीनियर दयाल साहब और सतीश जी, मैं सभी लोगों को धन्यवाद देता हूं कि आज गांधी पर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। मैं गांधी के सत्याग्रह पर मैं बात करूंगा, गांधीयन सत्याग्रह पर मैं बात नहीं करूंगा, क्योंकि दोनों में फंडामेंटल अंतर है। मेरा यह मानना है, मैं पूरे लेक्चर को 2-2 मिनट में 3 पार्ट में, सबसे पहले गांधी के सत्याग्रह को समझने के लिए जो सुबह में प्रार्थना हुआ था उसमें कहा गया था, ए पर्सन हु हैज ए हार्ट टू हेल्प समवन इन डिस्ट्रेस, वही गांधी हो सकता है। समय नहीं है गांधी को कैसे समराइज किया जाए, तो गांधी वाज ए क्रिएटिव पर्सन, क्रिएटिंग हिस्ट्री फॉर हिमसेल्फ एंड रेस्ट ऑफ वर्ल्ड टू फॉलो। दोस्तों, जिस साउथ अफ्रीका में गांधी 21 वर्ष रहे हैं, जो अफ्रीकन नेशंस के लोग हैं वो गांधी को स्वीकार नहीं करते। जिस धनपाल जी अभी बोल रही थी संस्था का, उसका जो फाउंडेशन पड़ा है वो मेरे हाथों से पड़ा है, जलगांव में, वीएल जैन साहब। सारी लाइब्रेरी की किताबें सर हमने दी है। गांधी को समझने का मतलब है कि गांधी के मूल को पढ़िए। मैं क्या कह रहा हूं या इंटरप्रिटेशन पर मत जाइए। इस देश में जो गांधी पर इंटरप्रिटेशन हुआ है वो वाकई में गांधी की हम हत्या कर देते हैं, और इसलिए आज जरूरत है सत्याग्रह को समझने के लिए। मैं पूरी बात को, गांधी की जो सत्याग्रह है या दूसरी चीज को देखिए। गांधी 1 अप्रैल 1947 को प्रधान साहब गांधी ने क्या कहता है, और देखिए आज वही वर्ष की है। नो वन लिसन टू मी एनी मोर, आई एम ए स्मॉल मैन, ट्रू देयर वाज ए टाइम व्हेन माइन वाज ए बिग वॉइस, देन एवरीबडी ओबेड व्हाट आई सेड, नाउ नाइदर द कांग्रेस नॉर द हिंदू नॉर द मुस्लिम लिसन टू मी, वेयर इज द कांग्रेस टुडे, इट इज डिसइंटीग्रेटिंग, आई एम क्राइंग इन विल्डरनेस। बहुत लंबा है, मैं नहीं पढ़ूंगा। और दूसरा लेख स्वयं गांधी के जीवित रहते हुए 4 अगस्त 1947 को, क्या हम सत्याग्रह की बात करें और गांधीयन वैल्यूज की बात करें, लिखते हैं, द गांधी इज बीइंग बरीड अलाइव। गांधी का मतलब है गांधीयन मोरल एंड वैल्यूज। आज सबसे ज्यादा गांधी की बात वो लोग करते हैं जिनके जीवन में दूर दूर तक गांधीयन वैल्यूज नहीं है, कास्ट क्लास जितने सब कुंठित है, और फिर हम गांधी की बात करते हैं। इसलिए बार बार सत्याग्रह पर सेमिनार होने की जरूरत है, जिससे कि हम स्टूडेंट में और दूसरे चीजों में कर दे। सर वो कहते हैं गांधी इज बीइंग बरीड अलाइव, 4 अगस्त 1947 को। गांधी मीन्स गांधी आइडियल्स, इट इज थ्रू दीज आइडियल्स वी हैव रीच्ड वेयर वी आर, बट वी आर किकिंग अवे the very ladder by which we have climbed so high, and it is those who consider to be Gandhi's greatest follower who are doing this. Hindu Muslim unity, Hindustani as a national language, खादी etc etc, ये गांधी के साथ हुआ है। समय कम है, सत्याग्रह पर मैं बहुत लंबा लेख लिख कर लाया था, मैं बात नहीं करूंगा। गांधी को समझने के लिए या सत्याग्रह को समझने के लिए गांधी क्वेश्चन फंडामेंटल। पूरी विश्व में जो वायलेंस की जो थ्योरी है उसको वो काउंटर नैरेटिव के रूप में नॉन वायलेंस को देते हैं, और बार बार ये कहा जाता है कि ओरिजिनली गांधी क्वाइन द सत्याग्रह। एक्चुअली इनकरेक्ट है, इस पर डिबेट हो सकती है, कहानियां बना दी जाती है, लेकिन फैक्चुअली इनकरेक्ट है। ये अलवासम जी का बहुत लंबा इस पर लेख,
जो डिबेटिंग गांधी में आपने जो है वो वर्णन भी किया है, उससे पहले भारतवर्ष में सत्याग्रह हो गए हैं। मैं सत्याग्रह के सिद्धांत पर नहीं जाऊंगा, लेकिन जब सर सत्याग्रह की बार बार बात करते हैं तो इसके कुछ बेसिक पोस्टुलेट्स हैं। नॉन वायलेंस है, फेथ इन गॉड नहीं है, फेथ इन योरसेल्फ नहीं है, तो आप सत्याग्रह नहीं कर सकते। और सबसे बड़ी बात है वो ये है सुप्रीमेसी ऑफ द मोरल लॉ एंड प्यूरिटी ऑफ द मीन्स। यहां हमारे विद्यार्थी बैठे हुए हैं सर। आज सबसे प्यारा शिक्षक कौन होता है? जो 25 में 25 नंबर दे दे। कितने हमारे विद्यार्थी जो है वो गांधी के वैल्यूज को फॉलो करते हैं और फिर हम समाज की तरफ देते हैं, क्योंकि कल ये नेता होंगे, यही प्रोफेसर्स बनेंगे, यही वाइस चांसलर बनेंगे। इसलिए हमें सबसे पहला, जब आप नॉन वायलेंस की बात करते हैं तो प्यूरिटी ऑफ द मीन्स होगा। सर बार बार दिखा रहे हैं, मैं बात सत्याग्रह पर आता हूं। वर्ल्ड में बहुत कम लोगों ने गांधी पर काम किया है और इसके पीछे समस्या है, क्योंकि 100 वॉल्यूम्स है। बहुत कम लोगों ने 100 वॉल्यूम्स के एक पेज को आइयों से पढ़ा है। पारिक कहते हैं कि सभी कंडीशंस में देयर इज लिमिट टू सत्याग्रह। अभी सुबह से केवल हो रही थी कि सत्याग्रह नहीं हो सकता, और वो 4 पॉइंट मैंने किताब में भी लिखा है रीडिंग गांधी, इसलिए आपके सामने मैं उस पर वर्णन आता हूं। लेकिन एक बात है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जो मैं आपके साथ शेयर करने के लिए बाध्य हूं, वो ये है कि जब मैं गांधी की बात करता हूं, देखिए सर 2 मिनट 3 मिनट और लूंगा और फिर मैं 2 मिनट में देखिए, गांधी 31 बार सत्याग्रह किए हैं जीवन में, 31 टाइम्स सत्याग्रह किए। डेट वाइज मैंने लाया है लेकिन समय नहीं है, जिसमें 6 बार जो वो सत्याग्रह करते हैं वो नेशनल क्वेश्चन पर करते हैं। और वो नेशनल क्वेश्चन साउथ अफ्रीका में भी होता है, शॉर्ट सत्याग्रह है, डांडी मार्च है, वगैरह वगैरह। ऐसे 6 सत्याग्रह गांधी करते हैं लोकल क्वेश्चन पर। चंपारण सत्याग्रह को लोकल क्वेश्चन माना जाता है, और चंपारण के बारे में बार बार बहुत सारी जो है भ्रांतियां भी बताई जाती है। लेकिन देखिए, एक इशू है कि सर गांधी जी ने 100 रुपया फाइन किया था, और जब गांधी जी स्पीच दिए हैं, जज इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने पॉकेट से 100 रुपया निकाला और कहा ये मैं पेमेंट करता हूं। और आपका जो रिसर्च है, जो डेटा कलेक्शन आप कर रहे हैं, में जनजागरण कर रहे हैं, में जो है वो सम्मिलित होता हूं, ये गांधी की ताकत थी। उसके बाद देखिए, ऊपर 4 बार सत्याग्रह करते हैं, फिर इंडिविजुअल मूवमेंट होता है और जिसमें 8 इश्यूज आते हैं। हिंदू मुस्लिम यूनिटी पर सबसे ज्यादा, एंटी अनटचेबिलिटी पर, और उसके बाद कुछ अदर सत्याग्रह हुए हैं, और वैसे सत्याग्रह 7 हैं जिसमें वो फास्टिंग करते हैं मोरल लैप्सेस के कारण। और फाइनली देखिए 2 सत्याग्रह और होते हैं, और इस मिलाकर 31 सत्याग्रह टोटल होते हैं। अब ये उठता है कि गांधी के सत्याग्रह से हमें क्या लर्न करने की जरूरत है। इसलिए गांधी और गांधीयन में अंतर है। मैं गांधी की बात करता हूं। पहली उसका जो थ्योरी है वो ये है, प्रैक्टिस एज यू प्रीच। जो दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है, प्रिजर्व द रिलेवेंट। जहां से भी आता है, एंशियंट से आ रहा है या जहां से भी आ रहा है, उसको आप लीजिए। प्रिजर्व द रिलेवेंट थिंग, डिस्ट्रॉय द इररिलेवेंट एंड क्रिएट व्हाट इज नीडेड। और आज जो आपने कहा कि 21st सेंचुरी में सत्याग्रह का स्तर, जितना विश्व में सत्याग्रह का दुरुपयोग हुआ है, कुछ लोग जेपी के भी आंदोलन को सत्याग्रह का रूप देते हैं, कुछ लोग अन्ना आंदोलन को भी सत्याग्रह का रूप देते हैं, लेकिन उसमें भाग लेने वाले कौन लोग थे? गांधी ने किया, उसमें मोरालिटी सबसे ज्यादा सुपरमैसी थी उसमें। जो इसलिए गांधी से 3 चीज, जब गांधी की सत्याग्रह की बात करेंगे तो पहला है सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए, सेल्फ डिटर्मिनेशन होनी चाहिए, सेल्फ डिग्निटी होनी चाहिए। और जब तक अगर ये नहीं होगा तो हम गांधी के रास्ते पर
नहीं चल सकते हैं और सत्याग्रह का। तो आज जरूरत क्या है 21st सेंचुरी में, जब मैं सत्याग्रह की बात कर रहा हूं, मैं सर खत्म कर रहा हूं, थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। विद्यार्थी नहीं करेंगे तब तक जाकर आप चीजों को नहीं समझ सकते हैं। और आज हम 21st सेंचुरी में बात कर रहे हैं। देखिए गांधी के सत्या, 21st सेंचुरी ये है क्या? इट इज अ सेंचुरी ऑफ वुमेन, सेंचुरी ऑफ दलित, वॉइसलेस। तो गांधी अपने सत्याग्रह के द्वारा, जो दलित थे, हम लोग गुलाम थे, और अंत में मैं यही कहूंगा कि हम लोग पहले गुलाम भारत के गुलाम नागरिक, इवन गुलाम नागरिक भी नहीं थे, लेकिन आज हम आजाद भारत की, समझता हूं, गुलाम से भी खराब जो है नागरिक की स्थिति। क्योंकि भुवन जी ने बहुत, जो बनारस में जो बोल रहे थे, दरभंगा महाराज भी बैठे हुए थे, बोल रहे थे, उन्होंने कहा इस देश में आप गरीबी की बात कर रहे हैं और जितने राजा महाराजाएं यहाँ पर बैठे हुए हैं, हाथ में कंगन, हीरे जवाहरात लगे हुए हैं कानों में और कोट में, और ये, और फिर हम जो है भुवन जी ने रख दी है, अब बंद करें। अंत में मैं यही कहूंगा, उजाले अपनी यादों को हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी के साथ। मैं सतीश जी निवेदन करूंगा कि कभी आप 1-2 घंटे के लिए बुलाइए, तब जाकर सत्याग्रह के थ्योरीज पर बात, क्योंकि गांधी के बारे में लोग तरह तरह की मिथ्य भावनाएं स्टूडेंट में डाल देते हैं। मैं समझता हूं मिथ्य को तोड़ने की जरूरत है। लास्टली सर, ये कहना इसलिए जरूरी है, देखिए दिनेश सिंह जी ने चरखा की बात की थी, मैं जिन संस्थानों में रहा जहां भी चरखा काटा जा रहा था मैं अपोज करता, क्योंकि उस समय जो चरखा काटे जाते थे वो सिंबल ऑफ सेल्फ रेस्पेक्ट, उससे महिलाओं को 29 रुपीज मिलते थे उस समय। आज अगर आप चरखा काटेंगे तो कुछ भी नहीं मिलेगी। इसलिए चीजों को टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट में। थैंक यू। बहुत एक मिश्र जी, he does not evoke, he provokes, and that's all. अब मैं अपने लिए समय नहीं, मैं नहीं बोलूंगा, मैं चाहता हूं कि बच्चे लोग सवाल करें, और इसमें गीता जी भी हैं, भुवन जी हैं, मिश्र जी हैं, उसमें भाग लें। तो इसलिए बच्चों, तुम्हारे लिए समय बचाया है, अपने लिए नहीं भाषण कोई करने वाला हो। सवाल करो प्लीज, आई रिक्वेस्ट यू, आई हैव सेव टाइम फॉर यू। तुम लोगों के लिए समय बचाया है, इन लोगों को मैंने इधर उधर करके, क्योंकि अगर ये काम नहीं है, हम लोग तो आपस में बहुत सी चीजें हम भी जानते हैं, ये भी जानते हैं, ये भी जानते हैं, वो भी जानते हैं, कोई खास, मैं अध्यक्ष मैं हूं तो प्लीज, अरे जी सवाल करो बेटे। Good morning, sir. Myself, Sri Kushal Chandra Royal from Political Science first year. Yes. Sir, my question is how Satyagraha is relevant in present everyone's life? How we can use Satyagraha in day-to-day life in everyone's life? आप बोलिए, नहीं, चेयरमैन है सर। आप नहीं, मैं जवाब नहीं दूंगा। सर, आप जवाब देंगे तो ज्यादा अच्छा हो। नहीं, आप जवाब दीजिए, आपको समय मैं बचा रहा था। देखिए किस प्रकार से जीवन सत्याग्रह का टेंस है, मैं आपको एक एग्जाम्पल से देता हूं, आपके लिए जो है जरूरी है। मैं एमए पास करके जैनियों के विश्वविद्यालय में मैं पढ़ाता था, नॉन वायलेंस एंड पीस रिसर्च। 7 इयर्स तक मैंने वहां पढ़ाया। अध्यापकगण सब बैठे हुए थे। उस समय हम लोग सैलरी मिलती थी 4,446 रुपए, मुझे याद है सर। ये मैं टेक्स्ट से मैं कह रहा हूं, क्योंकि उन्होंने सवाल किया है कि क्यों जरूरत है। नहीं, इतने ऑटोबायोग्राफिकल होने की जरूरत नहीं है। सवाल जो है, क्योंकि समय कम है। हम सभी लोग बैठे हुए थे और उन्होंने कहा कि आप इस पैसे का क्या करते हैं। मैंने कहा 1,000 रुपया मैं अपने पास रखता हूं, 1,000 रुपया मैं अपने परिवार को देता हूं, क्योंकि मैं किसान परिवार से आया था, बहुत गरीब परिवार से आया था, और 1,000 रुपया जो है, जो रिलेटिव हैं उनके पढ़ने के लिए मैं भेजता हूं और अपने पास रखता हूं।
और भी सवाल आएंगे तो समय तो नहीं है ना, समय तो सर छोड़ दीजिए, डिस्कशन मत करवाइए आप, लीव इट एज ए प्रोटेस्ट, लीव इट। नो सॉरी, यहाँ पर आए थे हम लोग थ्योरेटिकल डिस्कशन के लिए आए थे सर, सेमिनार एज ए पर्पस। समय का कंसेंट तो देखेंगे तो सर छोड़ दिए, जवाब आप दे दीजिए, सॉरी। कर लीजिए, कर लीजिए, ऑटोबायोग्राफिकल मत होइए, आप सवाल का जवाब नहीं। तो आपने जो सत्याग्रह की बात की, सभी शिक्षक हम पर हंसे थे, और जब 20 में विद्यालय में चीफ गेस्ट बन के गया और कहा आप लोग जो हंस रहे थे, मैं जिसको पढ़ाया हूं है, जिन 2 बच्चों को पैसा दिया जाता था वो दोनों इन्फोसिस और अमेरिका में नौकरी करते हैं। तो अपने आप संघर्ष करिए, जहां भी आपको होता है। गांधी यही अपने आप से वो संघर्ष कर रहे हैं। साउथ अफ्रीका में उनको गाल पर लगाया। आज हम क्या करते हैं, कंप्रोमाइज करते हैं, पढ़ते नहीं है, चाहते हैं यूनिवर्सिटी में टॉप कर जाएंगे, वो नहीं हो सकता। तो होल पर्पस इज कि आप अपने आप को एस्टेब्लिश पढ़ें, डेडिकेशन करें, शिक्षक का सम्मान करें, इंस्टीट्यूशन का नाम करें, यही तो गांधी ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। नमस्ते सर, मेरा नाम अंकित कुमार चौबे है और मैं पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स का स्टूडेंट हूँ। जी बताइए सर, जैसा कि आपने बताया कि हम सभी यहाँ पे एकत्रित हुए हैं कि गांधी के सत्याग्रह का क्या मूल है वो जानने के लिए है। कहते हैं कि किसी भी चीज का है तो उसको खुद से दूर करके देखो, तब पता चलेगा कि उसका मूल क्या है। तो सर, मुझे ये जानना है कि अगर हमारे देश में गांधी नहीं होते, गांधी था, तो वहां से हमारे देश का जो स्वतंत्रता आंदोलन था वो कैसे आगे बढ़ता गांधी जी और गांधी जी के सत्याग्रह के एब्सेंस में? शायद ज्यादा नहीं बढ़ता आगे, क्योंकि और तरीके, मैं इसका जवाब, और तरीके ट्रायल आप देखेंगे 1920 के पहले कानून के जरिए परिवर्तन होगा, वायलेंस से परिवर्तन, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी वगैरह सबको याद कर लीजिए, ये भी ट्रायल हो चुका था। कानून से लिबरल्स लोग या मॉडरेट्स लोग करते थे, थोड़ा बहुत तीनों लाल पाल बाल कर रहे थे। तीनों सिस्टम फेल हो गया था जब गांधी आए हैं, इसलिए गांधी के अभाव में शायद ये आजादी की लड़ाई ज्यादा। अच्छा, प्रोफेसर अरविंद शर्मा जी हैं, उन्होंने इसका रिप्लाई दिया। बोलेंगे, देखिए मिश्रा जी सर बोल लीजिए। हाँ। मैं बचाना है। बड़ा अच्छा प्रश्न है कि ऐसी कल्पना हो कि गांधी जी नहीं आए हैं और आजादी का संघर्ष चल रहा है। जो मॉडरेट्स विंग है वो अभी भी एक्टिव है जब गांधी आते हैं। होम रूल लीग का आंदोलन चल रहा है। तिलक की मृत्यु हो जाती 1920 में। वैसे तिलक का काफी बड़ा स्टैचर था हिंदुस्तान में, और अलग अलग पार्टियां गतिविधि चला रही थी। कोई एक ऐसा नहीं है कि आजादी नहीं मिलती, लेकिन कुछ स्वरूप में फर्क जरूर पड़ जाता। मसलन जिस प्रकार के स्वदेशी या स्वराज की चर्चा गांधी के आने के कारण, या जो इंटरनल रिफॉर्म अलोंग विथ द स्ट्रगल फॉर पॉलिटिकल फ्रीडम, जो दोनों साथ साथ चलने की प्रक्रिया हुई, वो हो सकता है कि उसमें कमी रह जाती। यदि गांधी से पहले का राजनीतिक स्वरूप देखें तो वहां देयर इज एब्सोल्युटली नो क्रूसेड अगेंस्ट अनटचेबिलिटी, देयर इज नो मूवमेंट फॉर, देयर इज नो मूवमेंट फॉर सेल्फ रिलायंस टू द एक्सटेंट दैट गांधी डिड। जो इंडिपेंडेंस की बात है, जो सोशल रिफॉर्म्स अलोंग विथ पॉलिटिकल, वो चीजें गांधी के आने से फर्क पड़ा। परहैप्स द काइंड ऑफ डेमोक्रेसी दैट वी एंजॉयड सब्सिक्वेंट टू 1947, उसका इसेंशियल्स गांधी ने जरूर निर्मित किया, इतना तो मान के चलना पड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। तो मेरा सवाल ये है कि आपने एक पीरियड इतना लाइफ टाइम गांधी जी के ऊपर स्टडी किया है, तो ऐसा क्या था कि आपको इतना प्रेरित किया कि आपको इनके ऊपर स्टडी करनी है? या आपके कॉलेज में स्कॉलर्स आते तो आप इंस्पायर हो गए कि हमें भी स्कॉलर बनना है? तो क्या था? ऑब्वियसली नॉन वायलेंट का था उनका कि सत्याग्रह चलाया था, बट ऐसे क्या फीचर्स थे जो सबसे अलग बनाया? सवाल करो। Why not वल्लभ भाई पटेल और the leaders जवाहरलाल नेहरू? Why only गांधी जी, जो बहुत स्टैंड आउट किया, आपको स्टडी करने का मन किया इतना लाइफ टाइम पे? मुझसे करेंगे, आपने इतना डीप स्टडी किया ना, आप अब तक
आप गांधी जी के इतने अच्छे बड़े स्कॉलर बने हो, तो ऐसा क्या था कि आपको उन पे ही करना पड़ा? बताइए सर। हाँ। हाँ हाँ, जैसे हमारे तरह लोग स्कूल के जमाने में भी, हम लोग जब स्कूल में थे तो आजादी की लड़ाई आ गई थी, और गांधी जी के काम को और गांधी जी के नाम को स्कूल, हर गांव गांव में, स्कूल स्कूल में बच्चों तक पहुंचा, और ये समझ आ गई थी कि इतना बड़ा काम गांधी ने किया है, देश की आत्मा को जागृत कर दिया है। बहुत लोगों ने कोशिश की है भारत की आत्मा को जागृत करने की, ये कि अकेले गांधी कर रहे थे, लेकिन गांधी ने भारत की आत्मा को जागृत किया है। कम उम्र में हम लोग थे, उस क्रम में फिर आगे जब मैं पढ़ाने लगा तो गांधी का ही चर्चा थी, और इसी को आगे बढ़ा करके तो और चीजों को तौला हमने। मैं कम्युनिस्ट पार्टी था, मैं सोशलिस्ट पार्टी में भी था, मैं जेल भी गया हूं। हमने तौल के रास्ते से ही देश की आत्मा जागृत हुई, और जरूरत पड़ी तो आगे भी गांधी के रास्ते से ही जागृत होगी, इसलिए गांधी। एक क्वेश्चन और जी, एक क्वेश्चन और कोई? धन्यवाद सर। सर मेरा प्रश्न है कि महर्षि अरविंदो 1905 में बात कर रहे हैं, सत्याग्रह की भी बात कर रहे हैं, सत्याग्रह की भी बात कर रहे हैं, और गांधी भी आगे चल के इन्हीं चीजों पे बात कर रहे हैं। गांधी 3 दफा अरविंद को पत्र लिखते हैं और पूछते हैं कि मुझे मिलने का समय दिया जाए। अरविंद तीनों दफा गांधी से मिलने से इनकार कर देते हैं। मैं जानना चाहता हूं उसके पीछे की भूमिका क्या हो। वो बड़े सर्जन कंट्रास्ट करने के मैं विरुद्ध में हूं, लेकिन फिर भी एक समझनी चाहिए कि अरविंद को नॉन वायलेंस से कमिटमेंट था। वो जो लॉर्ड बड़ौदा से 1906 के बाद और स्वदेशी आंदोलन चलाया और बायकॉट, एक तो और कंस्पिरेसी केस के बाद जो कंस्पिरेसी, तो फिर तो चले गए पांडिचेरी, चले गए जहां फ्रेंच रूल था, तो वो अपना काम दूसरी तरह से करने लगे। वो बात सही है, बड़ा काम है, लेकिन जहां तक आजादी की लड़ाई का सवाल है तो वहां तो जो में परसिस्टेंस कंसिस्टेंस हम देखते हैं वो तो नहीं देखते। उनमें उनकी कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि उन्होंने जो काम किया है दुनिया की आत्मा को जागृत करने का, भारत की आत्मा को जागृत करने का दूसरे स्तर पर, आध्यात्मिक स्तर पर, वो एक अपने आप में बहुत बड़ा काम है, और शायद वो गांधी ने। गांधी जी 1900 ईस्वी में आते हैं, विवेकानंद से मुलाकात होती है। अरविंदो से कब समय मांग रहे हैं पता नहीं, क्योंकि गांधी जी खुद 1915 में वापस आते हैं। लेकिन जो का जो स्पिरिचुअल फ्रंट है और जो चर्चाएं कर रहे हैं, आप यदि हिंद स्वराज को पढ़ेंगे और जो अनुशीलन समिति से अरविंदो जी के छोटे भाई का संबंध है और जो अलीपुर बॉम्ब ट्रायल होता है, तो मुझे नहीं लगता है कि वैचारिक स्तर पर बहुत साम्य है गांधी और अरविंदो में। लेकिन जो एक व्यापक धरातल है हिंदुस्तान की आजादी का, और जो स्पिरिचुअल कॉमननेस है और मतलब गांधी में और अरविंदो में, वो जरूर दोनों को नजदीक ला रहा होगा किसी न किसी रूप में। अरविंदो एक लिटरेरी जीनियस है जो गांधी नहीं है। हम ये ना मान करके चले कि गांधी सुपर ह्यूमन है। कई मामलों में अरविंदो का ज्ञान बहुत व्यापक है उस टेम्परेचर के मुकाबले, और बाद में भी ऐसे कई सारी चिट्ठियां मिलती हैं जबकि कांग्रेस ने या हिंदू महासभा ने अरविंदो को वापस पॉलिटिक्स में आने का न्योता दिया और अरविंदो ने मना किया। और किस संदर्भ में ये आप चर्चा कर रहे हैं, ठीक कभी हुई है? 1933। हाँ, तो वो चिट्ठी कभी क्योंकि जब अरविंदो चले जाते हैं पौंडीचेरी में बनाते हैं, दिस ऑलमोस्ट ए लाइफ ऑफ सेक्लूजन। किसी भी राजनीतिक गतिविधि से बचना चाहते हैं तो जरूर उस चीज की चर्चा करेंगे जो आपने उसको ध्यान देने वाली बात है। लेकिन चीजें अब
नहीं है जैसे कि हम लोग सोच रहे हैं। अरबिंदो का अपना कंट्रीब्यूशन है, तिलक का कंट्रीब्यूशन है। हो सकता है कि गांधी का अरबिंदो से जगहों पे सामने नहीं रहता हो, तिलक से भी नहीं रहता आप, क्योंकि खुदीराम बोस वाला ग्रुप है, उसको तिलक ने भी किसी न किसी रूप में सपोर्ट किया। गांधी वॉज वेरी क्रिटिकल ऑफ दिस काइंड ऑफ वायलेंस। तो चीजें टूटती हैं, लेकिन फिर भी तिलक स्वराज फंड में पैसा मोबिलाइज करने के लिए गांधी ने भी काफी प्रयास किए। तो आइडेंटिटी उतना डिवाइडेड नहीं है जितना कि 21वीं शताब्दी में बैठ करके हम लोग सोच रहे हैं। पीपल आर कैपेबल, पीपल हैव गिवन लीडरशिप इन देयर ओन वेज। तो गांधी के बड़ा होने से कोई और छोटा हो जाए, ये अच्छी बात नहीं होगी। ऐसा अक्सर गांधीवादी लोगों ने कर दिया, लेकिन ऐसा है नहीं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं। सर एक और- सेकंड, हाँ, एक, एक एक, मिनट। उनका एक और उत्तर मैं दूं दूसरे ढंग से सर। लेकिन 30 सेकंड में देंगे आप, उससे ज्यादा। ये है कि गांधी और विवेकानंद में कभी मुलाकात नहीं हुई है। गांधी विवेकानंद से मिलने के लिए उनके आश्रम में दिन विवेकानंद नहीं थे, मुलाकात नहीं हुई। लेकिन जो फैक्ट ये है कि गांधी, ये विवेकानंद के जी के पॉलिटिकल फिलॉसफी के या जो दर्शन को आगे बढ़ाने का काम अरविंदो घोष जी ने किया। कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम, स्वराज, ये सब जो बात कर रहे हैं, ये सब विवेकानंद से इंस्पायर होकर गांधी आगे किए। ठीक, और कोई? सतीश जी कहाँ गए? तो ठीक है, मैं तो कोई भाषण नहीं, अच्छी भाषण मैं नहीं करूंगा, समय बचा रहा था। एक ही बात कहूंगा, सतीश जी जब बोला, मैं आजकल कहीं नहीं जा रहा, बैठ करके लिख रहा हूँ। अभी एक भलो हमने स्वामी सहजानंद सरस्वती का अंग्रेजी किया है बंगाली, और छप गई है, एक तो वो यूपी ने छापी है। किसी बंगाली इंटेलेक्चुअल ने कहा, हिंदी क्षेत्र में तुम लोग खाली अंग्रेजी करते हो, हिंदी से कोई हिम्मत है, मैंने कर दूंगा। और रामनंदन मिश्र, बहुत लोग जानते होंगे, रामनंदन मिश्र के 5 अंग्रेजी में, हिंदी में वो छप रही है, इकट्ठा किया है। जो सारी अच्छाइयों को ठीक बताना है, एक बात कह रहा हूँ और कोई बात नहीं है, इसलिए कहीं जाता नहीं है। और सतीश जी के लिए एक बात खाली कह के खत्म करूंगा, आपको कुछ करना है कहिएगा क्या? सारी दुनिया का सॉरी, लाल कालीन बिछाए करे दुनिया, सतीश जी बुलाएंगे तो 16 पर चल करा। आपको कुछ बोलना? Thank you so much to our chairperson, our speakers, and the ma'am who joined us virtually. This was truly an insightful session, and I think we have learned so many new things about Gandhi that we will be taking away along with us. With this, we come to the end of this session. And now I would request the chairperson and the speakers to kindly move to the terrace above Principal Sir's room for lunch. And I would request the volunteers